तो एक्चुअली फ्रेंड्स आप ये नहीं कह सकते कि 0 के ठीक बाद वाला कौन सा पॉइंट है एंड 1 के ठीक पहले वाला कौन सा पॉइंट। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो शायद ज़्यादा इस बात को अच्छे से समझेंगे। जब यूपीएससी शुरू करो तो एनसीईआरटी पढ़ो, और जिस दिन आप इस तरह से पढ़ना शुरू कर दें, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो कोई भी नेगेटिव नंबर प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं जाएगा, प्लीज माइंड इट। आपकी इस एक इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। मुझे ये बताइए, अगर ये नंबर इन 4 नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम कैसे हो गया? So friends, today we are going to start with number system, right? The most important topic of UPSC CSAT, correct? And I would request you guys to please never miss any class of number system, right? I mean, try to attend all the classes and try to attend them live. I mean, those who are sitting online and those who are sitting offline also. All right? And never kill your curiosity in number system. Whatever questions you have, you please ask. Okay? So I'll give you enough food of thought. But instead of that, I mean, apart from this, if you have something, you please ask. Right? Because this won't be a one-way communication. This will be just an interaction where we all will be learning together. All right? Okay. Chaliye. So guys, today, let's start with the class. And I already informed you that number system, why it has so much of importance, because it has around 9-10 subtopics, right? And all the topics are important, right? आप ये नहीं कह सकते कि this is not that important or this is not that important. Everything is equally important, right? And guys, I'll be showing you the questions of UPSC. You will be amazed with the level of UPSC CSAT. Which type of questions are they asking these days, right? Even I have given many exams of quantitative aptitude like CAT. I mean, जितने एग्जाम आप जानते हैं मैंने सारे दिए हुए, ठीक है? एंड आई हैव क्वालिफाइड ऑल। तो मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? Yes, and let me tell you, some questions of UPSC CSAT are even tougher than CAT exam. Let me tell you, right? Even this year's questions, CAT students could not able to solve, because I have some students of mine like who are giving CAT exam also. So I have shown these questions to them, and they were saying, "Sir, क्या questions हैं ये?" Right? I'll be showing you also those questions. But before that, a concrete basement, I mean not basement, concrete base. Base is must, right? So anyways, guys, let's start. So the first thing is, today we are going to start with property of numbers. I mean the classification of numbers, how the numbers are being formed, and what are the types of numbers, what is the hierarchical order of numbers, right? So let's start with the classification. Okay. Let's just look at this chart. कोई ज़रूरत नहीं है इसको बनाने की, ठीक है? You just look at it, and आपके साथ अभी notes share कर दिए जाएंगे. Source में it will be there, and moreover annotation will also be shared with you. Don't worry, right? So just look at it. So the top hierarchy number is complex numbers. Okay, everyone. Complex numbers. Any idea? Anyone? What are the complex numbers? Anybody? Any idea? Anyone in the class? What? अच्छा, तो ऐसे तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट बहुत सिंपल हो वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। राइट। ऑलराइट, ए प्लस आई बी, ठीक है। See everyone, A plus IB, ठीक है। Like as your friend suggested, मोटा मोटा you can say like this. This is A plus IB form के जो numbers होते हैं, those numbers are known as complex numbers. That is okay. But what is A plus IB? See everyone, here complex means what? The combination of real and imaginary.
a combination of real and imaginary, right? This is the real part of it and this is the imaginary part of it. Now friends, a plus ib type का कोई भी number, right? देखिए, I always say कि whatever you see around yourself, it has some need. That's why it was invented. Whatever it was. I mean, you just look at this board or look at this chair or whatever, right? सबका कुछ ना कुछ नीड है, इसीलिए वो बनाया गया, ठीक है? Now, you all, I mean, you all in your, I think 20s, right? ठीक है? So friends, just tell me one thing, like till date, आप आगे आ जाओ ना प्लीज, जल्दी प्लीज. Till date, have you ever used complex number in your life? Anybody? Oh, ये आगे नहीं आता है. Anyways, बैठिए. Yes, everyone. Anyone? Have you ever used complex number in your daily life? कभी आपने किसी से कहा कि मेरी जो एज है वो 25 प्लस 32 आई है, समथिंग लाइक दैट? कभी कहा आपने किसी से? नो. So you never used complex numbers in your life, right? But still, complex numbers are there in mathematics, right? So there must be a need of it. ऐसे ही नहीं है, right? Even whatever you see, कुछ भी चीज unnecessary नहीं एग्जिस्ट करती, ये मैं आपको बता देता हूँ. Anything, right? Or any physical thing or any ritual, anything. If you think about it, it has a logic behind that. ठीक है? Anyways, थोड़ा जल्दी कर लीजिए प्लीज. Settle on fast. And try to come on time, please. Okay? Yes. So all of you, huh? वॉल्यूम बढ़ा दूं अपना, ये कह रहे हैं आप? सीरियसली मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को ऐसा? अच्छा, उसको भी नहीं आ रही. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ. एनीवेज, ठीक है. तो मैं क्या बात कर रहा था? मुझे तेज बोलना है ये मुझे याद है, लेकिन बोलना क्या है मैं भूल गया हूँ. यस. So guys, I was discussing about imaginary numbers. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैथ्स में आपको कभी ऐसा, आई मीन, हमेशा इस बात का रीजन है कि कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्यों है? बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आज तक सीरियसली मैंने भी कभी यूज नहीं किया. आई हैव नेवर यूज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन माय लाइफ, आई मीन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है? एंड आपने भी कभी यूज नहीं किया. तो व्हाई इट वाज इन्वेंटेड, और व्हाई इट वाज डिस्कवर्ड, और व्हाई इट वाज came into existence, what was the need of it? Just think on it, guys. क्यों है कॉम्प्लेक्स नंबर्स? क्या जरूरत है उसकी? इंफिनिटी. देखिए देखिए, एक बात समझिए गाइस, जैसा अभी इन्होंने किया, इंटरव्यू में आप ऐसा मत करिएगा. ठीक है, राइट? ध्यान रखिएगा. इफ यू डोंट नो, यू सिंपली से सर आई डोंट नो, राइट? यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो. तो एनीवेज, देखिए फ्रेंड्स, एक बात समझिए. मैं आपको बताऊं, लाइक, हैव यू एवर हर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे, लाइक, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एवरीबॉडी ओके, राइट? When we were working on quadratic equations, one quadratic equation we got like that: x square plus 1 is equal to 0. Right, everybody? X square plus 1 is equal to 0. Okay? And this quadratic equation is responsible for complex numbers. Why? Because the solution for this equation is what? The solution for this equation is this.
Correct? Agreed, everyone? Now, guys, you don't have a number whose square is negative. We don't have a number whose square is negative. Is it? Right? So, to solve this quadratic equation, because देखिए x is equal to under root of -1, ये हो जाएगा. Right? Now, to solve that equation, हुआ क्या कि जब ये इक्वेशन आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहीं पे रुक गई. Everything, like every calculation got stopped over there. Right? So, to continue that solution, like we have assumed a number from our side whose square is equal to -1 or whose value is equal to under root of -1. And since it was an imaginary number, so that's why we have named this as I for iota, right? So I is equal to under root of -1, or you can say I square is equal to -1, correct? And the number, like which is the combination of both real and imaginary, is known as the complex number, right everyone? This number does not exist actually. Okay? But to solve some equations, right, we have considered them, we have imagined them. Everybody okay? Right? All right. So this is the real part of it, and this is the complex, I mean the imaginary part of it. So guys, the imaginary part of this, so this can't divide it further. Now let's talk about real numbers, everyone. Right? Now let's talk about real numbers. What are real numbers, everyone? Anybody? Any explanation? Any definition? Any clue? What are real numbers? कुछ भी, जो भी आ रहा है. हाँ? Okay, ठीक है. The number which can be represented on the number line. Guys, here we have one more term, number line. What is number line, everyone? मैं इसको हटा दूं क्या? ठीक है. What is number line, friends? Number line is simply a line that contains all the numbers from -infinity to +infinity. Okay, everyone? Number line is simply a line which contains all the numbers from -infinity to +infinity. Any number that can be represented on a number line is known as the real number. समझिए बात को. मुझे एक बात बताइए. It contains all the numbers from -infinity to +infinity. Does it contain this number? Yes. So this is a real number, friends, right? Okay. Now, this is a real number, yes or no? Yes. देखिए, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू आप जानते हैं, राइट, इज नोन एज अ रियल नंबर. एनी नंबर. मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं. जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो शायद ज्यादा इस बात को अच्छे से समझेंगे. जीरो के बाद वाला रियल नंबर, कैन यू टेल मी विच नंबर इज लाइंग जस्ट आफ्टर जीरो? Can you tell me a real number which is lying just after zero? Can you tell me a real number which is lying just after zero? 0.1, 0.01, 0.00. 0.0 is zero only. Can you tell me a real number which is lying just after zero, guys? Vanshika. Zero something. How many times zero? हाँ, कितनी बार लिख सकते हैं? ठीक बात है. See everybody, let me tell you. एक्चुअली क्या होता है कि आप इस नंबर लाइन पे एक डॉट भी ऐसे लगा दोगे ना, राइट? Inside this dot, we will have infinite number of real numbers. Let me tell you. Correct? Real numbers are so dense actually. You never tell which number will be coming after this number. Right? Even, let me tell you, whenever, like, if in calculus, if you have solved the questions of limit, differential, definite integral जिसको बोलते हैं, नहीं, differential equation.
नहीं डिफरेंशियल जो लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 समथिंग लाइक दिस, राइट? So guys, here they never say x equal to 0. They always say x tends to 0. Right? Okay. And let me tell you, even if I talk about calculus, so let me tell you open interval and close interval. Guys, open interval and close interval का concept भी वहीं से आया है. Because अगर आपको कोई point ऐसा लिखना है, suppose that ये है close interval. Sorry, ये है open interval. I'm sorry. Open interval. अब इसमें अगर आपको ये मेंशन करना है कि द पॉइंट बिटवीन 0 एंड 1, पॉइंट्स बिटवीन 0 एंड 1, तो एक्चुअली फ्रेंड्स आप ये नहीं कह सकते कि 0 के ठीक बाद वाला कौन सा पॉइंट है एंड 1 के ठीक पहले वाला कौन सा पॉइंट. So that's why we just represent like this. And if 0 and 1 included, sorry, if 0 and 1 included, so this is closed interval. In closed interval, boundary points included. In open interval, boundary points excluded. Is it clear, everyone? Right. And why boundary point excluded? Because आपको नहीं पता है कि 0 के बाद point ही क्या है. ठीक है? Everybody it is clear now. तो real numbers इतने ज्यादा dense होंगे कि एक point में भी infinite numbers exist करेंगे. Please mind it, everyone. ठीक है? Clear? तो जितने numbers को आप value दे सकते हैं, like वो सारे ही numbers real number हैं. Everybody clear now? ठीक है? All right. After that, guys, real number can be further divided into two parts: rational and irrational. Okay. Now, guys, what are rational numbers? Anybody? Phone silent कर लीजिए अक्षय, please. हाँ जी. Which can be represented in the form of P by Q. Okay. And Q is not equal to 0. Okay. That's good. Shall I remove this, guys? हाँ, ठीक है. आपने मुझे बताया कि rational numbers are the numbers which can be represented in the form of P by Q and Q is not equal to 0. ठीक है? अच्छा. ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं उस पर भी. Rational numbers are the numbers which can be represented in the form of P by Q where Q is not equal to 0. Right, everyone. सबसे पहले तो मुझे बताइए what is the meaning of Q is not equal to 0. अब ये मत कहिएगा Q 0 नहीं होना चाहिए. I don't want to listen this. Please. Q is not equal to 0. What is the meaning of it? Why? Why so? I don't know. See, everyone, Q can't be 0 means you can't divide any number by 0. Right? You can't divide any number by 0. And why you can't divide any number by 0? It goes to infinity. ठीक है? ठीक है, everyone. आप कह रहे हैं 1 by 0 is infinity और 2 by 0 is also infinity, 3 by 0 is also infinity, right? Okay. Balaji is saying, sir, 0 don't have any value, that's why. अच्छा, ठीक है. See, everyone, let me tell you. मुझे एक बात बताइए. Do you understand the basics of division? Huh? Do you understand the basics of division? For example, let me tell you. For example, 15 by 5. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of it? हाँ? नहीं, आंसर 3 होगा, ये बात सही है. Everyone, actually, how many times 5 must be added to 5 to make it a 15? Correct? How many times 5 must be added to 5 to make it 15?
So the answer is 5 plus 5 plus 5. So obviously this is 3. That's why the answer is 3, everyone. Correct? This is the basic of division. Division का मतलब ये होता है, पहले ये समझिए बात को. ओके, राइट. अच्छा, ठीक है. अगेन जैसे कि अब आप इसको भी कर सकते हैं, राइट. सो 3 plus 3 plus 3, the answer is 4, right? अच्छा. Now, if this question comes in front of you, hey everyone, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. If this question comes in front of you, then obviously you have to check how many times zeros must be added to zeros to make it 1. Right? How many times zeros must be added to zeros to make it 1? क्या होगा? नहीं होगा. कितनी बार ऐड करूं मैं इसको? बताइए. कितनी बार ऐड? How many times? हाँ? Not possible. Okay. देखिए, not possible जो है ना, बहुत एक्सट्रीम टर्म है, राइट? वो हमें नहीं बोलना चाहिए, राइट? क्योंकि we all should be optimistic. Right? Yes, everyone. देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसको इनफाइनाइट टर्म क्यों बोला गया? राइट? 0 plus 0 plus 0 plus 0, why they have called it as infinity? क्या रीजन? Anyone? संजय? कहीं ना कहीं जाके वैल्यू आएगा. अच्छा, देखिए एवरीवन, यू माइट हैव हर्ड this कि like parallel lines meet at infinity. Have you heard about it? Right? Have you ever thought about it? Have you ever thought about it? कि parallel lines infinity में जाके कैसे मिल जाएंगे? बोलिए. Anyone? Any idea? No idea. Okay. Guys, let me tell you. थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लग सकता है आपको, बट वहीं से आया ये. ठीक है. अगर आप बहुत हाइट पे जाकर खड़े हो जाएं, मतलब अपने घर की छत पे कभी जाके खड़े हो जाएं और वहां से बहुत दूर देखें अगर, राइट, तो यू कैन ऑब्जर्व, like you can observe a place where this this sky and this earth, they seem to meet somewhere. They seem to meet somewhere. Have you observed this? Right. You can treat this earth as a plane and you can treat this sky as a plane. These are two parallel planes. They are meeting somewhere. The point is too far. They are meeting somewhere, right? Now what happens if I ask you कि भाई जरा उस पॉइंट पे चले जाओ, just go to that place. Where are they meeting? What will happen? Yes, the point will move further. आप वहां जाओगे, वो पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा. This will happen everyone, right? So what I'm trying to say is कि आप जितना आगे जाते जाओगे, वो पॉइंट उतना आगे बढ़ते जाएगा. Now they are meeting somewhere because your eyes are witnessing that. You can't deny that fact. They are meeting somewhere, but where? We don't know. Right? मिल तो वो रहे हैं, लेकिन कहाँ मिल रहे हैं? I don't know. So guys, in mathematics, it is an assumption, right? Something which is not happening, it is assumed that it is happening in infinity. Correct? So that's why, because वो होगा कहीं ना कहीं. I mean, आप deny नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिख रहा है मिलते हुए. Correct? So that's why, like, ये बोला गया कि भाई ये infinity में जाके ये हो जाएगा. Correct everyone? So that's why 1 by 0 is infinity, 2 by 0 is infinity, 3 by 0 is infinity, or any number divided by 0 becomes infinity. Right? So guys, that's why
they have written it, q cannot be equal to 0. See everyone, when your teacher says कि भाई जब यूपीएससी शुरू करो तो एनसीईआरटी पढ़ो, राइट? तो यू शुड स्टडी लाइक दिस, ओके? मैं कहना ये चाहता हूं कि उस बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर एक सिंबल भी लगा हुआ है ना, तो वो भी बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। करेक्ट एवरीवन, राइट? लेकिन आपने क्या किया कि आपने कहा कि अरे मैंने 3 महीने में 6 से लेकर 9 तक की एनसीईआरटी खत्म कर दी। क्वेश्चन तो आते ही है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया अभी इस बार। व्हाट वाज द क्वेश्चन? आपने क्वेश्चन पढ़ा था या आपने कहीं से सुना था? आपने देखा? ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, राइट, गुड गुड गुड, ठीक है। तो एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आपसे कहा जाता है पढ़ने के लिए, तो आप ऐसे पढ़िए उसको, राइट? और जिस दिन आप इस तरह से पढ़ना शुरू कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी कोई जरूरत नहीं होगी उसकी, राइट? इनफैक्ट किसी की जरूरत नहीं होगी आपको, यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट। और मैं आपको बताऊं, जब आपकी कभी कुछ लर्निंग हो रही होगी, जब आपने कुछ सीखा होगा एक्चुअली, तो आपने ये फील किया होगा कि आपने ही आपको बहुत कुछ सिखा दी, कर करके बहुत कुछ सीख लिया आपने। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? एक्सपीरियंस्ड इट, राइट? जब आपकी लर्निंग हो रही होगी ना फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल अकेले होंगे वहां, सिर्फ आप होंगे और सिर्फ आप होंगे, बस। और आपके साथ आपकी बुक्स होंगी, कोई नहीं होगा वहां। किसी भी फील्ड में लर्निंग, मैं कह रहा हूं, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, राइट? तो जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे, या जब आप कोई कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, जब, हालांकि हम लोगों ने बहुत प्रोग्रामिंग की है, आप लोगों ने भी शायद कभी सी लैंग्वेज या कुछ ऐसा पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है? तो जब आप प्रोग्रामिंग करते होंगे, तो आप ये चीज नोटिस करते होंगे कि आपका सिस्टम आपको बहुत कुछ सिखाता है, राइट? या और भी कुछ, ठीक है? या जैसे मान लीजिए कि जब आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं, तो रेसिपीज भी आपको समझ में आ जाएंगी जब आप धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे, राइट? तो एनीवेज, ठीक है। तो गाइस, पी बाई क्यू, नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट, राइट? अभी हम इस पे बात कर रहे थे, नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट, पी बाई क्यू। व्हाट इज पी बाई क्यू? हाँ, फ्रैक्शन, गुड। P by Q is a fraction. So actually what I want to say is, a number which can be represented in the form of a fraction is known as rational number, right? Now guys, fraction, मुझे एक बात बताइए, let's say the number is written like this, 1.25, right? Now if I want to represent this number to its equivalent fraction, right, what should be done for that? Multiply by, divide by 100, multiply by 100. क्वेश्चन इज कि अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो व्हाट शुड आई डू? गाइस, both are correct. We have to multiply this number by 100 as well as divide this number by 100. And 100 कहां से आया? After decimal we have 2 digits. That's why 1 will be followed by 2 zeros. Correct everybody? Right. So 1 will be followed by 2 zeros. This into 100 and this divided by 100. Correct everyone? So this will become 125 by 100, and both the numbers are the multiple of 25, so this becomes 5 by 4. So what I'm trying to say is 1.25, the equivalent fraction of 1.25 is 5 by 4. Correct everybody? So this is the number which can be represented in the form of P by Q, and here Q is not equal to 0, right? So this number is a rational number everyone. Correct? Now, मुझे एक बात बताइए, this is what? This is 1.25, and let's say this is 1.625. Guys, what is the process? You have to multiply by 1000 and divide by 1000.
right? So what I'm trying to say is, if we have countable digits, right, after decimal, even if you have 100 digits, you will be able to convert that number into fraction, yes or no? Guys, okay? Correct? The process is clear? Now, the problem occurs when? The problem occurs when we have infinite digits after the decimal. Correct? For example, मैं इसको हटा दूं अभी. For example, let's say we have 3.3333 and 3 up to infinite number of times. You know its value क्या होती है? हाँ, क्या होती है फ्रैक्शन में? 10/3. 10/3. Right. The value is 10/3, everyone. Okay. Now, friends, how to convert this value to its equivalent fraction? Okay. Here, you know that like after decimal we have 3 digits. So this number will be multiplied and divided by 1000. But here after decimal, how many digits are written? Infinite. तो आप 1 के बाद कितने जीरो करके मल्टीप्लाई करोगे भाई? कैसे करोगे? बोलिए. No idea? See everyone, for all such questions, देखिए मैं इसको हटाता हूं, ठीक है? For all such questions, we assume this value as x, whatever you want to assume, let's assume it as x. How many digits are written after decimal which are repeated? Single digit, right? So this number will be multiplied with 10, 10x. Guys, what is the value of 10x? ठीक है अभी? Everybody agreed? ठीक है? Now let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. So if I subtract equation number 1 from equation number 2, then what will happen, guys? 10x minus x will give you 9x. What will happen here? 30. Everyone? Because after decimal, both the values, I mean both the expression have the same value. Okay? So this will be cancelled. So this is 30. So 9x is equal to 30. This implies x is equal to 10/3. Everyone, yes or no? Is it clear, everyone? Right, guys? So if you have finite digits, this is the process. If you have infinite digits, this is the process. Okay? One question UPSC has asked. Let me show you. अभी देखिए क्या है. देखिए डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो it will be multiplied with 10. If let's say there are 2 digits are being repeated, then it will be multiplied with 100, right? Guys, one UPSC question, ये पार्ट में हटा दूं क्या? या रुकिए, अच्छा मैं इधर लिखता हूं, ठीक है? One UPSC question, it was 1.272727, I think. I don't exactly remember the question, but I think it was the question. You have to find the equivalent fraction to this number. This is UPSC CSAT question. Can you solve it and tell me the answer? Do it, please, and tell me the answer. (14 by 11)? All of you? 14 by 11? See everyone, when you multiply by 100, so this is 100x is equal to 127.272727 and so on. So this is 99x is equal to 126. This implies x is equal to 126 divided by 99. And friends, both the numbers are divisible by what? 9. So this is 14 by 11. Everybody okay now?
ठीक है, करेक्ट, ओके. See friends, what I'm trying to say is, after decimal, if you have finite number of digits, then you have the process, right? Now, if you have infinite number of digits, you also have the process, correct? Like this. अब मान लीजिए डेसिमल के बाद अगर 4 digits repeat हो रहे होते, right? Let's say the pattern was 2345 2345. I mean 1.2345 2345 2345 2345. Then obviously it would have been multiplied with 10,000 number. I mean 10,000, correct? Right? 1 followed by 4 zeros actually. ठीक है? Now this is all about rational number. The complementary of the rational number is what? The rational number का complementary is irrational number. And friends, as the definition says, a number which can be represented in the form of P by Q is known as a rational number, right? Now, what will be irrational number, everyone? What will be irrational number? So, irrational number, a number that cannot be represented in the form of P by Q. Okay? Now, friends, cannot. ये अपने आप में बहुत extreme term है, right? बहुत heavy term है. Cannot, right? कि भाई हो ही नहीं सकता. Correct? Why it is so? कि हो ही नहीं सकता. ऐसा क्या है जो हो ही नहीं सकता भाई? Have you ever thought about it? कि why they have used the word cannot? A number that cannot be represented in the form of P by Q. क्योंकि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले I भी कहीं ना कहीं मतलब शायद अगर आप ऐसे कहते कि भाई ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, तो what they have done? They have considered a number which was imaginary number from their side. ठीक है कि भाई इसको एक नंबर अज्यूम कर लो i is equal to under root of -1 और इसको सॉल्व करो, राइट? बट यहां पे दे आर सेइंग अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q. हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा फॉर्म है वेयर योर प्रोसेस विल सीज? देखिए गाइस, वी हैव टू प्रोसेस एक्चुअली हियर, राइट? अगर काउंटेबल नंबर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इनफाइनाइट नंबर भी है बट उनमें एक पैटर्न है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट अगर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे लिखे हो जिसमें कोई पैटर्न ना हो, यहां पे आपको यह समझ में ना आए कि यहां पे आप कितने जीरोस लेने वाले हैं, राइट? देन दैट प्रोसेस विल सीज टू एग्जिस्ट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट एवरीबॉडी? क्लियर? अच्छा, अभी देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप अपना फोन निकालिए एक मिनट के लिए. जो लोग इनका फोन बहुत बजता रहता है, मेरा निकालिए एक मिनट के लिए अपना फोन, राइट? एंड यू प्लीज सर्च द वैल्यू ऑफ पाई. एंड गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने 3.14 बताइए, नहीं. यू प्लीज सर्च द वैल्यू ऑफ पाई एंड डू वन थिंग, गो टू द इमेज सर्च एंड देन टेल मी कितने क्या इमेज दिख रही है और क्या उसमें वैल्यू लिखी हुई है. मैं उस वैल्यू को यहां लिखता हूं आपके सामने. पाई की वैल्यू मुझे बताइए जरा, क्या लिखी हुई है? हाँ प्लीज. 3.1415926, हाँ, 53589 बस करिए, अब मैं लिख नहीं पाऊंगा. ठीक है एवरीवन, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने इमेज खोली, राइट? यू हैव सीन इट. आई हैव रिटन अराउंड 10 प्लेसेस तक लाइक वैल्यू लिख दी मैंने. आपकी जो रिजल्ट में जो वैल्यू आ रही है ना, यू जस्ट ऑब्जर्व दैट दे मस्ट हैव रिटन एटलीस्ट 100 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल एंड after that it was dot dot dot. The value is still continuing.
एटलीस्ट 100 डिजिट्स लिखे होंगे, चेक कर लीजिए आप, राइट। एंड गाइस, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्राई टू कन्वर्ट दिस नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक, यहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। यहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो, like this number will be multiplied by what? If you assume this as x, right, this x will be multiplied by what? Like here you have multiplied with 10, here you have multiplied with 100. Yahan pe you don't know, right everyone? So you won't be able to convert this number into its equivalent fraction. And guys, let me tell you, in my college days, I was doing an experiment with MATLAB. MATLAB software आप लोगों ने सुना है नाम? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं सुना है तो अच्छी बात है, राइट। इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसको कहते हैं मैटलैब, ठीक है। तो आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट विद दैट सॉफ्टवेयर। मेरा फाइनल सेम का डिसर्टेशन था, तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था। तो पता है क्या हुआ, वी हैड टू इनपुट सम वैल्यू। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कहाँ पे हम उस समय कौन सी वैल्यू को इनपुट कर रहे थे। तो मैटलैब एक्चुअली इट आस्क्स ऑल द टाइम कि हाउ मेनी करेक्ट आफ्टर द डेसिमल, हाउ मेनी प्लेसेस अप टू करेक्शन यू वांट। तो अब उसमें एक वैल्यू इंसर्ट करनी थी, पाई, ठीक है। तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था अभिषेक। तो मैंने उससे कहा यार अब ये पाई मांग रहा है, इसको क्या करें। तो ही सेड डू वन थिंग, इसको 10,000 डाल दो डेसिमल के बाद, राइट, चेक करते हैं क्या होता है। ऐसा ठीक है। तो आफ्टर डेसिमल अप टू 10,000 प्लेसेस करेक्शन के लिए मैंने उसमें लिखा 10,000। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड, आई वॉज इन दिस स्क्रीन एंड द स्क्रीन वॉज लाइक स्क्रोल्ड अप 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 अप, एंड मैं बहुत नीचे आ गया। एंड पाई की वैल्यू जो है ना 10,000 प्लेसेस तक लिखी हुई थी, एंड इट वॉज नॉट एंडेड, इट वॉज स्टिल डॉट 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 डॉट, राइट एवरी। तो उस दिन एक्चुअली हमें समझ में आ गया कि भाई this number cannot be represented in the form of p by q, right? So when they say कि it cannot be represented, means it cannot be represented. When they have written cannot, it has some substance. Everybody okay? Right? By the way, what is pi? होता क्या है? क्या definition क्या है pi? Anybody? क्या होता है pi? Obviously it is related to circle, ये बात सही है। क्या होता है pi? देखिए गाइस, यही है बेसिक न्यूमरेसी टिल क्लास 10। आप समझ रहे हैं? यही है बस कि आपको पाई की डेफिनेशन नहीं पता है। और अभी मैं आपको बताऊं, आपसे मैं पाई की वैल्यू भी पूछूंगा तो बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे 22/7, राइट। अच्छा, चलिए अब इस पर डिस्कशन हो रहा है। अरे एक सेकेंड देखिए गाइस, ठीक है, ही इज राइट, आता हूं मैं उस पर भी। 22/7 मुझे ये बताइए, इफ हैव यू एवर थॉट इफ पाई इज 22/7, राइट, हैव यू एवर थॉट if pi is 22/7, this is following all the conditions of rational numbers. It is written in the form of p by q, q is not equal to 0. It is following all the conditions of rational number. Then why pi is an irrational number if it is 22/7? अब बताइए। नहीं, नॉन टर्मिनेटिव वो तो बात की बात है। मैं ये कह रहा हूं, अगर पाई आपने ये पढ़ा है ना, तो अगर पाई ये है तो फिर पाई रैशनल क्यों नहीं है, फिर पाई इरैशनल क्यों? 22/7 हो गया ना वो, अगर पाई की वैल्यू 22/7 है। व्हाट?
ओके, ठीक है। सी एवरीवन, व्हाटएवर यू गाइस आर सेइंग इज टोटली करेक्ट। ये बात सही है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। प्लीज माइंड इट, ठीक है। It is a value that we have considered for ease of calculation, for our convenience. Right, everybody? The exact value of pi is not 22/7. It is this only, जो ऊपर लिखी हुई. But this is a very close approximation to this that we have considered for our convenience to use in the calculations. ठीक है? अच्छा. Now I was discussing like what is pi. So your friend has answered कि pi is the semicircle का. अच्छा, semicircle का. सर्कल का, सर्कल का। See everyone, pi is what? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, लाइफ ऑफ पाई। यू रिमेंबर? देखी थी? क्या देखा था उसमें? शेर। शेर देखा, सॉरी, शेर देखा था उसमें। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट शेर? अगर शेर देखा था तो शेर की बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट शेर? होप यू रिमेंबर दैट, राइट? उस शेर का नाम था रिचर्ड पार्कर। याद आया आपको? अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो देखिएगा जाके। इट वाज ऑस्कर विनिंग मूवी, ठीक है, उसको देखिएगा। एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे पाई की। तो पता है लाइफ ऑफ पाई में जो जो प्रोटैगनिस्ट है, इरफान खान, सॉरी। इरफान खान। तो जो इरफान खान है, उनका जो चाइल्डहुड कैरेक्टर है, उसका नाम पाई पटेल है। तो वो जब स्कूल गया वो, तो उसके मैडम ने उससे पूछा कि उसके टीचर ने कि लाइक व्हाट इज योर नेम? ही सेड माय नेम इज पाई पटेल। तो उनसे पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, डू यू नो दैट? देन ही सेड द डेफिनेशन ऑफ पाई। तब उसने पाई की डेफिनेशन वहां बताई, और फिर उनसे कहा गया कि डू यू नो द वैल्यू ऑफ पाई? देन ही स्टार्टेड राइटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, एंड होप यू रिमेंबर दैट शॉट। वहां पे he was writing the value of pi and he has filled around 3-4 boards consecutive, और पूरा क्लास उसमें सो गया और वो पाई की वैल्यू लिखता रहा। आप अगर नहीं याद है तो आप देखिएगा जाके, ठीक है? आपको याद है? ओके, दैट्स गुड। एनीवेज, तो फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, के पाई क्या है वहां पे उसने बताया था, ठीक। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पाई। पाई इज जस्ट अ रेशियो। पाई इज रेशियो ऑफ व्हाट? इसको समझिए जरा। मैं 1 मिनट के लिए इसको हटाऊं यहां से, इसको हटा दूं यहां से। आई जस्ट वांट टू यूज दिस स्पेस, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पता है क्या है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और वो क्या था उसको समझ लीजिए। और ये एक्सपेरिमेंट किया था आर्किमिडीज ने, सॉरी। फिर उसके बाद इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और हुए हैं, इंडिया में भी हुए, राइट। तो वहां पे क्या था कि एक बात समझिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी भी, इवन आज भी ये प्रैक्टिस है कि जब हमारे पास मेजरिंग स्केल्स नहीं होते, राइट, तो उस समय व्हाट वी यूज टू मेजर समथिंग इज जस्ट अ स्ट्रिंग, जिसमें हम अपनी तरफ से मार्क लगा लेते थे कुछ, राइट। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे ऐसे करके नाप देते हैं कुछ। देखा है आपने? राइट। पहले एक्चुअली कुछ ऐसे ही होता था, ठीक। देन हमारे पास स्केल नहीं होते थे तब। तो एनीवेज, इवन अभी भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी अगर आप हार्डवेयर शॉप पे जाएं या किसी इलेक्ट्रिशियन के शॉप पे जाएं, एंड यू वांट टू परचेज सम वायर, और यू वांट टू परचेज सम ट्यूब, सपोज दैट वाटर ट्यूब, जो पानी का पाइप होता है ना, एंड इफ यू आस्क हिम कि भैया मेरे को 5 मीटर पाइप दे दो, तो व्हाट दे डू, उन्होंने अपने काउंटर पे एक मार्क लगा रखा होता है मीटर का, 1 मीटर का, राइट। तो व्हाट दे डू, दे जस्ट मेजर लाइक दिस, 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। हैव यू ऑब्जर्व्ड इट गाइस? राइट नाउ, so we used to use a string,
टू मेजर समथिंग, राइट? इवन आज भी अगर आप किसी टेलर के पास जाइए कुछ स्टिच करवाने के लिए, और जब आपको अपना मेजरमेंट उनको देना होता है, तो व्हाट दे डू, दे जस्ट हैव अ इंची टेप, समथिंग कुछ मेजरिंग टेप, एंड व्हाट दे डू, दे जस्ट रैप इट लाइक लाइक दिस, और फिर उसको खोलते हैं और कहते हैं कि यस आपका वेस्ट 28 है, ठीक है। राइट एवरीवन, तो दे डू लाइक दिस, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, सपोज दैट आई हैव नथिंग, ठीक है, I have only one string and I have some circles, some different circles. ठीक है? What are the two parameters? The first parameter I can measure is the perimeter. Right? मैं इसको पूरा ऐसे लपेट के खोल के चेक कर लूंगा कि कितना है ये. Right? So the first parameter, I mean, the first thing that I can measure is the perimeter of the circle. ठीक है? And the second thing that I can measure is the diameter of the circle. Everybody, yes or no? The first thing is the perimeter, and the second thing, perimeter नहीं, sorry, circumference. Circle के केस में इसको circumference कहते हैं. राइट, वैसे है ये पैरामीटर ही, बट इन केस ऑफ सर्कल वी कॉल इट सर्कमफरेंस, ठीक है? तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, द टू I mean the two parameters we can measure. Let's say for this circle we have taken circumference and diameter. For this circle we have taken circumference and diameter. तो है क्या कि he was taking some readings out of it, ठीक है? So he was doing like c plus d, c minus d, c square plus d square, something he was doing, ठीक है? One thing that was coming like exactly common or exactly same for all the circles was c by d, ठीक है? For all the circles one value was coming same, that was c by d, ठीक है? And the value was what? The value was 3.141, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है. This value was coming actually, ठीक है? Now friends, he thought कि यार it has some constant fixed value, c by d, the ratio of circumference to diameter has a fixed value, ठीक है? And that time Greek letters, they used to use Greek letters actually, right? So this is the alphabet of Greek, I mean Greek, वो जो alphabets होते हैं ना, उसका एक ही alphabet है, ठीक है? So they have like found the value as this and they have given the name as pi. Greek letters उस समय यूज किए जाते थे, तो ये ग्रीक का एक अल्फाबेट है एक्चुअली, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का. अब वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है, इट इज फाइन. वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू थी. नो द प्रॉब्लम इज कि यार सर्कल जो है ना, सर्कल सर्कल इतना वाइडली यूज ज्योमेट्री है, ठीक है, कि अगर थोड़ा सा भी उसमें ऊपर नीचे हुआ, मान लीजिए कि आपकी जो मेजरमेंट है उसमें आप ले रहे हो डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस, मैं ले रहा हूं 7 प्लेसेस, आपको पता है उतने से कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यू नेवर नो. अब सर्कल के साथ प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे आपने रोड भी देखे होंगे, तो रोड में राउंड अबाउट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे. इवन आप टेम्पल देखेंगे तो उसके ऊपर जो टोम्ब होता है वो भी आपने देखा होगा. मॉस्क देख लीजिए आप, वॉट एवर. तो प्रॉब्लम ये हुई कि यार इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, राइट? तो वी शुड हैव टू हैव अ यूनिवर्सल फिक्स्ड वैल्यू कि सब लोग उसका यूज करें. जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी है गाइस, केमिस्ट्री में आपने एक नेम पढ़ा होगा IUPAC, याद है आपको? तो क्या होता है ये? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूं. जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आप है संजय, ठीक है, तो संजय जो है इनका एक यूनिवर्सल नेम संजय है. अब ये अपने घर जाएंगे अगर, तो हो सकता है इनके जो पापा हैं वो इनको संजू बुलाते हो सकता है इनकी जो फ्रेंड हो या इनकी वाइफ जो हो वो इनको बेबी कह के बुलाती हो, राइट? ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इनका जो एक यूनिवर्सल नेम है वो संजय है, बाकी आप रीजनली इनको कुछ भी बोलते रहिए, इट्स ओके. तो सिमिलरली आप अपना लोकली आप वैल्यू कुछ भी यूज करते रहिए, बट जो यूनिवर्सल एक वैल्यू कंसीडर की जाएगी वो या तो 3.14 कंसीडर की जाएगी या फिर 22/7 कंसीडर की जाएगी. एंड व्हाट वाज 22/7? 22/7 is actually a very closed approximation to this value, this long value. Correct everybody? ठीक है, so this is the all about, I mean, pi. Guys, is it clear?
everyone. Pi is what? Pi is the ratio of the circumference to diameter of a circle. And everyone, let me tell you, diameter, suppose that मैं radius को अगर r बोलता हूँ, समझिएगा बात को, right? Suppose that radius is r, then diameter will be 2r, ठीक है? So c divided by 2r, everyone, c for circumference, c divided by 2r is equal to pi, then circumference is equal to 2 pi r. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद. Circumference of the circle is 2 pi r. And why it is 2 pi r? Because c divided by 2r is equal to pi. Correct, everybody? Yes. ठीक है? Okay. ठीक है? Is it clear, all of you? ठीक है? Okay. नोट कर लीजिए अगर कुछ लिखना है तो. And then we can move. Yes, all of you done? Now guys, this was all about rational and irrational. Irrational में जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, उनका जो अंडर रूट है, सपोज दैट √2, √3, √5, ठीक है? Under root of all the prime numbers, they all are irrational. Please, ठीक है? Now guys, irrational number cannot be categorized further. ठीक है? Irrational number cannot be categorized further, and rational number can be further divided into two parts. Okay? Rational number can be further divided into two parts. The first is integers and the second is fraction. Fraction तो आपको clear हो गया, right? जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1.25, ये 5/4 बनेगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक? बट इसमें if in the denominator you get 1, suppose that a number is 5/1, right? So if denominator becomes 1, guys, then that rational number becomes integer, right? It can be positive, it can be negative, ठीक है? तो इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स को समझिएगा जरा. मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं यहां से, ठीक है? इंटीजर्स क्या होंगे? इंटीजर्स आर दीज आर इंटीजर्स गाइस, ठीक है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसको आप आई से डिनोट कर दो, ठीक है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जो नंबर्स फ्रैक्शन से फ्री होंगे, ठीक है, वो इंटीजर्स होंगे. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो. मुझे ये बताइए गाइस, दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स and this is the set of negative integers. What about 0? Is it positive or negative? क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो गया? Yes, everyone. What about 0? Is it positive or negative? Huh? Everyone? What about 0, guys? Is it positive or negative? 0 is a neutral term. It is neither positive nor negative. ठीक है? Okay. So these are the set of positive. I mean, this is the set of positive integers. This is the set of negative integers. And this is 0, which is neither positive nor negative. Guys, 0 अपने आप में एक अलग कैटेगरी है पूरी, ठीक है? अच्छा, अब आप एक बात और समझिए. The set of positive integers are known as natural numbers, everybody. ठीक है? It is denoted by capital N. The set of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. Okay? 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. This is known as natural numbers. Correct, everyone? And negative integers are known as negative integers. And guys, this natural number along with 0 becomes whole numbers. Correct. Natural number along with 0 becomes whole number and it is denoted by W. ठीक है? ठीक है? And guys, whole number को एक चीज और कहा जाता है कभी कभी, उसको कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी होल नंबर के लिए यूज किया जाता है टर्म कभी कभी. इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है? ओके. एंड फ्रेंड्स, व्हेन द क्वेश्चन सेज नॉन नेगेटिव,
एक बात समझ लीजिएगा, आई रिपीट एवरीवन, व्हेन द क्वेश्चन सेज नॉन नेगेटिव, स्पेशली नॉन नेगेटिव, देन क्वेश्चन वांट्स यू टू थिंक अबाउट जीरो, प्लीज माइंड इट, क्योंकि सिंपली वो पॉजिटिव लिख सकता था वहां, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हियर एक्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो आप मान के चलिए कि एक्स को जीरो आपको कंसीडर करना ही है, प्लीज, ठीक है। एवरीबडी क्लियर नाउ, ऑल ऑफ यू डन गाइस, ओके, ठीक है। एनी डाउट इन दिस चार्ट गाइस, एनीबडी, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनीथिंग सो फार क्लियर एवरीवन, ठीक है। शैल वी मूव, आगे बढ़ जाए हम लोग, ओके, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, ओके गाइस, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? हाँ, मैं इसको हटाऊं क्या यहां से, या ठीक है चलिए नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इस प्राइम नंबर, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव नंबर्स प्राइम नहीं होते, ठीक। आप इसको सबसे पहले जब पढ़िए तो यहां पे रुक जाइए, नेचुरल नंबर, राइट। तो कोई भी नेगेटिव नंबर प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं जाएगा, प्लीज माइंड इट, राइट। अ नेचुरल नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स। नाउ गाइस अगेन अ न्यू टर्म, फैक्टर्स। क्या होता है फैक्टर्स? ठीक है, किसी नंबर को जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो फैक्टर होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अब 3 देखिए आप, अच्छा 1 को इग्नोर करेंगे, 1 सबका फैक्टर होता है तो उससे कोई मतलब नहीं। 3 का क्या कोई फैक्टर है? 3 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 3, समझिए बात। 3 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड 5। बट इफ आई टॉक अबाउट 6 हैज 4 फैक्टर्स, 1 2 3 6। गाइस यस और नो? 1 divides 6, 2 divides 6, 3 divides 6, and 6 also divides 6. Right? So guys, 6 is not a prime number. 3 will be considered as prime number, 5 will be considered as prime number, 11 will be considered as prime number, 17 will be considered as prime number. Everybody clear now? Okay. So a natural number that has only 2 factors, like which is 1 and itself, is known as a prime number. Everybody clear now? Friends, for example, 2, 2, 3, 5, 7, 11, and 13, and so on, right? Guys, here 2, you know what? 2 is the first prime number. Why not 1 is a prime number, guys? Because 1 has only one factor, which is 1 itself, right? तो ये definition के साथ नहीं जा रहा है. It is not following the definition of a prime number. Correct, everyone? अच्छा. So 2 is the first prime number and 2 is the only even prime number. Only even prime number. Mind it, guys. ठीक है? Only even prime number is 2. ठीक है? ध्यान रखिएगा. ये बहुत बार बहुत सारी जगहों पे आपकी इस एक इंफॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है? कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर. ध्यान रखिएगा इस बात, प्लीज. ठीक है? अच्छा, आफ्टर दैट ये जो नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है इसको पढ़िए जरा. A very important point regarding prime numbers. A prime number greater than 3 can always be expressed in the form of 6 n plus minus 1 or 4 n plus minus 1, where n is a natural number, but converse is not true. ठीक है? इसको पढ़िए जरा ध्यान से. देखिए गाइस, सबसे पहले तो ये बताइए 6 n plus minus 1 इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? Where n is what? n is a natural number. क्या मतलब है इस बात का? हाँ, नहीं, हाँ जी, क्या मतलब है इस बात का?
एनी वन ऑफ यू? क्या 1 to infinity? देखिए गाइस, आप कोई प्राइम नंबर बोलिए जरा। जैसे मैं ये उठाता हूं, ठीक, 17। 17 इज व्हाट? 17 इज 6 into 3 minus 1, करेक्ट? ठीक है। और इट इज 4 into 4 plus 1, उसको भी देखिएगा, ठीक है, राइट? एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर। देखिए 31 इज 6 into 5 plus 1, ठीक है। एनी अदर प्राइम नंबर, लेट्स से 23, 6 into 4 minus 1. Guys, is it clear? Any prime number you say, any prime number, it must be either one more than a multiple of 6 or one less than a multiple of 6. Any prime number. Is it clear, everyone? Provided it should be greater than 3. Okay? Is it clear, everyone? Clear, everyone? अच्छा, अब एक बात और लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? ठीक, what is this? फिर से बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। का जो भी दोनों होंगे मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम जरूरी नहीं है। गाइस, सबसे पहले तो ये बताइए कन्वर्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्स मींस, यस, ठीक है, कन्वर्स मींस रिवर्स, ठीक है। सी एवरीवन, इफ अ नंबर इज प्राइम, बात समझिए आप। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, ऑल आर, हाँ, और परसुइंग ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएशन आई मीन। क्या पोस्ट ग्रेजुएट्स में हैं कुछ लोग? अच्छी बात है अगर हैं तो, ठीक है। सपोज दैट यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, ठीक है। So if you are postgraduate, you must be graduate. Guys, yes or no? If you are a postgraduate, you must have done graduation. But if you have done graduation, you may be or may not be a postgraduate. Yes or no? I repeat, those who are writing mains this year, they must have cleared prelims. Correct? Similarly, if you are a postgraduate, you must have done your graduation. But guys, if you have done graduation, you may be or may not be postgraduate. Yes or no? For example, if you are 12th pass, right, you must be 10th pass. Yes or no? But if you are 10th pass, you may be 12th pass or may not be. Yes or no, guys? आप आगे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे नहीं पता किसी। Yes or no? So similarly, if a number is prime, it is definitely following a form of 6n plus minus 1. ठीक है? But if a number is following this form, it may be or may not be the prime number. For example, the number is 25. 25 is following this form, 6n plus 1. Yes or no, guys? But it is not a prime. Guys, clear? So converse is not true means this. This condition is true only from one side, not from both the sides. Everybody okay? Okay, guys. Acha, can you tell me a sentence in mathematics where the converse is true? Any condition? A number is even if it is divided by 2. Okay? So a number which is divided by 2 is also an even number. So it is true for from both the sides. And let's say a multiple of 10 is ended with 0, right? So if a number is ended with 0, it must be the multiple of 10, right? And if a number is a multiple of 10, it will be ended with 0. So this condition is true from both the sides. Guys, is it clear? Okay? Okay. आ गया समझ में आपको ये? ठीक है? ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो इट्स ओके, वी कैन मूव। ठीक है,
All of you, shall we move now? Everyone? Okay, आगे बढ़िए जरा. Okay, some important facts about prime numbers. क्या लिखा हुआ है? One is neither prime nor composite. अच्छा, guys, composite number क्या होता है? जब भी कोई नया टर्म दिखा करे तो रुक जाए करिए भाई. क्या होता है composite number? Yes, a number which has more than two factors is known as composite number. For example, अभी मैंने 6 लिख के दिखाया था, आपको याद है आपको? तो 6 is a composite number. Correct, friends? ठीक है? Okay, so 1 is neither prime nor composite. 2 is the only even prime number and the first prime number. They are infinite prime numbers. ठीक है? 1 to 100 में we have total 25 prime numbers and we have total 46 prime numbers from 1 to 200. ये बात आप याद रखिएगा. इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है इस इंफॉर्मेशन. ठीक है? I'll tell you the question also. Is it clear, everyone? ठीक है? 1 is neither prime nor composite and there are total 25 prime numbers up to 100 and there are total 46 prime numbers up to 200. Clear? Okay. ठीक है. ठीक है, these are the numbers. ये 1 to 100 तक के प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं. ठीक है? सिंगल डिजिट के 2 3 5 7 एंड 11 टू टीन्स में होते हैं 1 11 13 17 एंड 19 एंड 20s में होते हैं अपने पास 23 29 30s में होते हैं 31 37 एंड लाइक दिस. ठीक है? तो गाइस दीज आर टोटल 25. आप काउंट कर लीजिएगा. दीज आर टोटल 25. ठीक है? एवरीबॉडी क्लियर नाउ? ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, हाउ टू टेस्ट वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट. ठीक है? इसको रूट एल्गोरिथम बोल सकते हैं, रूट टेस्ट भी कहा जाता है कभी कभी. बुक्स में आप इसको रूट टेस्ट वर्ड भी लिखा देखेंगे कहीं पे. ठीक है? आप इसको पढ़ लीजिए एक बार. करिएगा कुछ नहीं, मैं बताता हूं क्या है ये. जस्ट रीड द थ्योरी पार्ट. ठीक है? हाँ जी, पढ़ लिया आपने? देखिए, डेफिनेशन तो जो लिखा है लिखा रहने दीजिए उसको. थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है ये. मान लीजिए कोई नंबर है 53. ठीक? आई नीड टू टेस्ट कि ये नंबर प्राइम है या नहीं. ठीक है? तो फ्रेंड्स, आई टेक द रफ रूट ऑफ दिस नंबर, अंडर रूट, रफ. तो it will be like 7 point something. 7 7 is 49. So under root of this will be 7 point something, guys. Right? So rough root will be 7 point something. So I'm considering it at 7. Okay, everyone? Now, friends, all the prime numbers which are less than 7. Okay? 2, 3, 5. ठीक है? आप पूरा यहां तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक? Now try to divide this number by these prime numbers. 53. 2 is the factor of 53. No. Okay. 53 is divisible by 3. No. 53 is divisible by 5. No. 53 is divisible by 7. No. So guys, if not, then this number is a prime number. ठीक है? Again, एक और क्वेश्चन कर लीजिए आप. Let's say it is 83. ठीक है guys, 83. What is the rough root of 83? 9. ठीक है? So all the prime numbers till 9. 2, 3, 5, 7 again. So friends, 83 is not the multiple of 2, is not the multiple of 3, is not the multiple of 5, is not the multiple of 7. ठीक है? So again it is a prime number. ठीक? कोई और नंबर आप अभी आप 2 डिजिट पे रहिए, मैं 3 डिजिट पे भी आपको ले चलता हूँ. 2 डिजिट का कोई और नंबर आप बोलिए जो कि आपको प्राइम लगता हो या टेस्ट करना हो आपको. 39, 29. 29 तो खैर बहुत सिंपल हो गया, बिकॉज इसका रूट क्या होगा? इसका रूट होगा 5. तो 2, 3, 5. So this is not the multiple of 2, not the multiple of 3, not the multiple of 5. So this is a prime number. Guys, is it clear? Theory part is clear. जो आपने पढ़ा था. Theory part is clear. Now friends, देखिए, ये बात हो गई बुक में जो लिखा हुआ है और जो आपने पढ़ लिया. लेकिन मैं आपको बताऊं, यूपीएससी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस. Information part is okay. Your
application of that information is also okay. UPSC will be bothered कि भाई what you have done with that information. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि ये आप कर क्या रहे हो, पहले तो ये समझो. What exactly happening by this? And what are you trying to establish by doing this? मुझे ये बताइए, अगर ये नंबर इन 4 नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम कैसे हो गया? आई एम नॉट एबल टू फील दैट. इज इट क्लियर एवरीवन? कि भाई एक नंबर इन 4 नंबर से अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम हो कैसे गया? पहले ये बताइए, हाउ डिड इट एस्टैब्लिश्ड कि ये प्राइम है? क्यों नहीं आएंगे इसके फैक्टर्स? आपने 7 तक चेक कर लिया, 7 के आगे भी तो इसके फैक्टर हो सकते थे, मैं ये कह रहा हूं. वाई सो? क्या रीजन है इस बात का? ठीक है, रूट तक नहीं आ रहे तो आगे नहीं होंगे शायद, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्यों है ऐसा? क्या रीजन? गाइस रीजन करना सीखिए, क्वेश्चन करना सीखिए प्लीज. ओके प्लीज. यस. क्या 1 से नीचे चल जाएंगे मतलब? नहीं, मैं ये कह रहा हूं आगे के नंबर्स इस नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी है? इन 4 नंबर से डिवाइड करके इस बात की गारंटी मिल गई? मैं ये पूछ रहा हूं. आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन गाइस? क्योंकि देखिए, आपने सॉल्व कर दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? और जब तक आप इस तरह से करना नहीं शुरू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप भूल जाएंगे. ये बिल्कुल आप याद कर लिया आपने, भूल जाएंगे. नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हाई नॉट बियॉन्ड 7? बियॉन्ड 7 भी तो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 11 है, 13 है, 19 है, 17 है, तो व्हाई नॉट बियॉन्ड 7? इतने तक से करने से ऐसा क्या एस्टैब्लिश हो गया कि ये प्राइम है, या क्या गारंटी हो गई कि ये प्राइम हो गया? तो ये पूछ रहा हूं. क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता? नहीं, प्राइम नंबर तो ऑड होते ही हैं 2 को छोड़ के. यस एवरीवन? हाँ जी. नरेश. ओम, क्या कहना चाहते हैं आप? नो? यस? हाँ. अच्छा, तो नहीं, दैट इज ओके. मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रोसेस ऐसा क्यों बनाया गया है, क्या रीजन है इसके पीछे? मैं ये पूछ रहा हूँ. आप तो इस प्रोसेस को यूज करके बता रहे हो कि वो इससे छोटा है. गॉट इट? हाँ. अरे टाइम बचा. ऐसा कुछ नहीं है. देखिए एवरीवन, एक बात समझिए. देखो, एक तो सबसे पहले फेंकना बंद करो, ठीक है? प्लीज. देखिए, ठीक है, एक बात समझिए. आप जब भी किसी नंबर को फैक्टराइज करते हो ना, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन होता किस तरह से, पहले इस बात पे फोकस करिए. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है? क्योंकि हम लोग बार बार रूट पे बात कर रहे हैं, तो लेट मी टेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है? गाइस, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 36. है परफेक्ट स्क्वायर? इसके फैक्टर्स लिखता हूं. 1 2 3 4 6, आगे बोलिए, 9 12 18 36. और भी कोई है? कोई छूटा तो नहीं है? चेक कर लीजिए एवरीवन. यस और नो? ठीक. ओके. नाउ गाइस, एक बात समझिए कि आप सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करो बस. ठीक है? एक बात बताइए, अगर 1 जो है 36 का एक फैक्टर है, तो 1 इंटू समथिंग विल गिव यू 36. यस और नो? ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं तो होगा इसी नंबर में. तो 1 into what? 1 into 36 will give you 36. Similarly, if 2 is a factor, then 2 into something will give you 36. Guys, yes or no? If 3 is a factor, then 3 into something will give you 36. If 4 is the factor, then 4 into something will give you 36.
6 is what? 6 is like under root, so 6 will be multiplied by 6 itself to give you 36. So it has no pair guys, ठीक है। हालांकि ये सब जब हम फैक्टर करेंगे ना तो I'll tell you everything in detail, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। अब एक बात समझो, आपको पता है ये नंबर कितने लिखे हुए हैं? जस्ट काउंट देम। 9। एंड वेयर इज 6 प्लेस्ड? 6 की प्लेसिंग क्या है? यस गाइस, इसकी प्लेसिंग है 5th। बिफोर दैट 4 numbers, आफ्टर दैट 4 numbers, I mean 4 factors, and this is 5th। एग्जैक्टली मिडिल में ये प्लेस होगा हमेशा। कभी भी आप फैक्टर निकालोगे ना, वो एग्जैक्टली मिडिल में प्लेस होगा। आई मीन जो अंडर रूट पार्ट होगा वो एग्जैक्टली मिड पार्ट होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ गाइस, अगर इसके पहले कुछ इसके फैक्टर्स हैं तो ये फर्स्ट हाफ ले लीजिए आप, और ये दिस इज सेकंड हाफ, ठीक है। तो इफ सम फैक्टर्स आर लाइंग इन द फर्स्ट हाफ, देन देयर कॉम्प्लीमेंट पार्ट विल बी लाइंग इन द सेकंड हाफ। करेक्ट एवरीवन? अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे जब यार ये है इसका रूट, तो ये इसका फर्स्ट हाफ हो गया। फर्स्ट हाफ में फैक्टर ही नहीं है, तो सेकंड हाफ में क्या होगा? राइट गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? फर्स्ट हाफ में कोई फैक्टर ही नहीं मिल रहा है, तो सेकंड हाफ में कैसे मिलेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ही नहीं कहीं से। इज इट क्लियर एवरीवन? इसलिए सिर्फ इतना चेक किया जाता है टाइम बचाने के लिए। ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस फाइन नाउ, प्लीज नोट इट डाउन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ? कर्पन, वर्षा, ओके, प्रियदर्शनी, ऑलराइट, ठीक है। सी एवरीवन, इधर देखिए। नाउ द क्वेश्चन इज चेक वेदर 241 इज अ प्राइम और नॉट। गाइस 241 का रफ रूट क्या होगा जरा बताइए मुझे। 241 एवरीवन, व्हाट इज द रफ रूट ऑफ दिस? 15, 15 या 16 कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स विच आर लेसर देन 15, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है एवरीवन। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। 241 is not divisible by 2, ठीक है, हटाइए। It is not divisible by 3 because 24, तो 240 will be divisible by 3. It is not divisible by 5. It is not divisible by 7. अच्छा, see everyone, अब देखिए 7 से डिवाइड मत करने लगिएगा इसको प्लीज। What you can do is you can take the small number. 7 3s are what? 21, right? So 21 is the multiple of 7. So 210 is the multiple of 7. Correct everybody? Now 241 is what? 210 plus 31. This is the multiple of 7. This is not the multiple of 7. So their sum will not be the multiple of 7. Is it clear everyone? Okay. Now 11. 220 plus 21. Guys, अगर ये 22 होता तो डिवाइड हो जाता, right? So 220 plus 22 हो जाता तो हो जाता, but this is 220 plus 21. So this is also not the multiple of this. Now guys, this is 2, okay, 241 है ना, ठीक है। So 241 is what? 260 minus 26 कर दूं मैं, तो 260 minus 26 कितना आएगा? 234. See guys, 234 is the multiple of 13, so 241 is not. Is it clear everyone? या फिर एक बात और थोड़ा सा इजी कर लीजिए। 260 minus 13, this is 247, ठीक है। तो गाइस 247 अगर 13 का मल्टीपल है तो 241 will not be the multiple of 13. Guys, is it clear now? अभी ठीक है, comfortable, ठीक है everyone? अच्छा, so this number is what? This number is a prime number. Everyone okay? And you should do division like this, please. ऐसे मैं ये नहीं देखना चाहता हूं आपकी कॉपी पे कि आप ऐसे कर रहे हैं, प्लीज ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? प्लीज एवरीवन, ओके, ऑलराइट। इज इट क्लियर एवरीवन? फाइन, ठीक है, ओके। नाउ गाइस, वी हैव स्टडीड अबाउट प्राइम नंबर्स। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट को प्राइम नंबर्स, ठीक है। एक यूपीएससी का क्वेश्चन है यार, वो इसमें नहीं है क्या?
ठीक है, चलो रुकिए, अभी है नहीं शायद इसमें। ठीक है, तो गाइस नाउ अबाउट को प्राइम नंबर्स. Co-prime numbers means what? The two numbers which are relatively prime to each other. The two numbers which are relatively prime to each other. मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए other than one. ठीक है? For example, if HCF of two numbers A and B, if HCF of two numbers A and B is 1, right? If HCF of 2 and B, sorry, A and B is 1, then A and B are said to co-prime to each other. ठीक है? All right. For example, 8 and 15. Everyone, try to think about it. 8 and 15. मुझे ये बताइए 8 and 15 के बीच में कोई नंबर ऐसा है जो आपको कॉमन दिख रहा है? जैसे मैं आपको बताता हूँ. Let's say कि 15 and 18. If you think about the numbers, then 3 is dividing both of them. 3 is dividing this also, 3 is dividing this also. Correct? But if the common factors of these two numbers is only 1, then these numbers are known as co-prime to each other. ये आपस में प्राइम है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. Is it clear, everyone? Right. Okay. So if HCF is highest common factor. So if highest common factors of two numbers is 1, then these numbers are known as co-prime to each other. And guys, एक बात समझिए, co-prime में numbers का prime होना जरूरी नहीं है. Here, both of them are composite, but they are relatively prime to each other. Is it clear? Right? Okay. All right. अच्छा. Now guys, even numbers. Even numbers क्या होते हैं? Multiple of 2. अच्छा ठीक है. मुझे बताइए जीरो क्या होता है? जीरो क्यों? क्या होता है जीरो गाइस? इवन होता है या ऑड होता है? कैसे? किसी भी नंबर क्लास में जीरो लगा दे, नंबर जीरो हो जाता है. तो उससे क्या हुआ? मुझे बताइए जीरो क्या है? जीरो अलोन, इज इट ऑड और इवन? जीरो अलोन. यस एवरीवन, क्या है जीरो? क्यों इवन है? क्या नाम है आपका? रिधिमा. ओके, रिधिमा, जीरो इवन क्यों है? कहीं पढ़ा है आपने? बोलिए ना, बोलिए बोलिए. कहाँ पे? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं. मैं इसीलिए इतनी देर यहां खड़ा नहीं होता कभी. ओके, तो एवरीवन जस्ट थिंक अबाउट इट. एक बात समझिए, कोई नंबर अगर इवन है, राइट, तो इवन नंबर का जो जनरल फॉर्म है वो है 2n. n यहां पे क्या है? n यहां पे एक इंटीजर है. ठीक है एवरीवन, n यहां पे एक इंटीजर है. इंटीजर का मतलब आप समझ रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक वो नंबर जो फ्रैक्शन से फ्री है. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो जरा, आप n को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, या -1, -2, -3, -5, -6, कुछ भी रख दो आप, ये नंबर हमेशा एक इवन नंबर ही देगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू n. ठीक है. नाउ गाइस, सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, जीरो भी तो एक इंटीजर होता है कि नहीं होता है? तो अगर आप n की जगह जीरो डाल दें, सो दिस नंबर विल बिकम जीरो, राइट? तो जीरो इज द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ इवन नंबर्स, करेक्ट? बट ऑड नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या होता है गाइस? ऑड नंबर्स का जनरल फॉर्म होता है 2n प्लस -1. ये है ऑड नंबर, जहां पे n बिलोंग्स टू द इंटीजर. n कोई भी इंटीजर हो सकता है. ठीक है, अब आप देखो, मैं आपको गारंटी करता हूं, आप n को कोई भी इंटीजर पुट कर दीजिएगा, इस एनी इंटीजर, ये कभी भी आपको जीरो नहीं दे सकता. चेक कर लीजिए, n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, यू वोंट गेट जीरो हियर. वॉट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू टेक, कुछ भी ले लीजिए.
n की वैल्यू आप -1 रख दीजिए, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, n की वैल्यू 0 रख दीजिए, वॉट एवर, ठीक है। तो दैट्स वाई 0 इज द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ इवन नंबर, राइट। ये नंबर कभी भी 0 नहीं बन सकता, करेक्ट एवरीबॉडी, क्लियर। देखिए गाइस, जो कुछ भी है उसके पीछे एक रीजन है, आप उस रीजन को समझिए। अब आपको समझ में आ रहा है, जब जब यूपीएससी कहता है बेसिक न्यूमरेसी टिल क्लास 10th, वो है क्लास 10th तक की न्यूमरेसी, लेकिन आप उसको पहली बार पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ाई की ही नहीं, एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट, मैं आपकी फॉल्ट नहीं कह रहा हूं, वहां पे आपको पढ़ाया नहीं गया इस तरह से। अगर आप इतने क्वेश्चंस वहां कर देते, ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैं आपसे करता रहता हूं, तो आपसे कहा जाता है कि आप क्लास में नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप बाहर निकल जाइए क्लास, एक्चुअली। हाँ, फेल तो खैर, फेल तो ओके गाइज, इज इट क्लियर नाउ, ठीक है, ओके। तो दिस इज इवन नंबर, दिस इज ऑड नंबर, राइट एवरीवन, ओके, ठीक है। आज के हम लोग इतना ही रखें क्या? क्योंकि मैं क्वेश्चंस पे भी नहीं आना चाहता हूं डायरेक्ट, बिकॉज क्वेश्चंस पे आऊंगा तो ये सारी की सारी जो थ्योरी है, आप इसको प्लीज अच्छे से पढ़िएगा जाके एक बार, ठीक है, राइट। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और टुमारो विल बी रिज्यूमिंग द क्लास फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ठीक है। तो पहले ही जितना कुछ आपको बताया गया नहीं, आपसे सुना जाएगा पहले, ठीक है, राइट। अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस, थैंक यू, होप यू एंजॉयड द क्लास, राइट, थैंक यू।